Hello students, welcome back again to my English channel, The Unforced English 721, and thank you for watching my videos. And today's lesson is interesting one. This one is not any grammar lesson. This one is the class 9 chapter of CBSE board, The Fun They Had, from the Beehive book. Okay, so without wasting time, we have to start the story reading fast, and I will explain you in Hindi. Okay students, so let's start the chapter. Margie even wrote about it that night in her diary. On the page headed 17th May 2157, she wrote, "Today Tommy found a real book." मार्जी ने उस रात अपनी डायरी में इसके बारे में लिखा भी था। ऊपर पृष्ठ पर लिखा था 17 मई 2157 वाले पृष्ठ पर उसने लिखा, आज टॉमी को एक वास्तविक किताब मिली। It was a very old book. Margie's grandfather once said that when he was a little boy, his grandfather told him that there was a time when all stories were printed on paper. ये एक काफ़ी पुरानी किताब थी। मार्जी के बाबा ने एक बार कहा था कि जब वो छोटा सा लड़का था तो उनके बाबा ने उन्हें बताया था कि एक समय था जब सभी कहानियाँ पेपर पर छपती थी। ओके, I hope you students, I hope you are understanding my explanation. If it is convincing and it is helping you, don't forget to subscribe my channel and obviously smash the like button, and why don't you share this video with your friends. Okay, now come to the next para. They turned the pages which were yellow and crinkly, and it was awfully funny to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to. उन्होंने पन्ने पलटे जो पीले और सलबट युक्त हो रहे थे, और उन्हें उन शब्दों को पढ़ना बहुत ही अजीब लग रहा था। ठीक है, जो स्थिर थे, जो शब्द स्थिर थे, हिल नहीं रहे, जैसे आपको पता है कि स्क्रीन पर होते हैं। You know, okay? And then when they turned back to the page before, और जब उन्होंने पिछला पन्ना पलटा, it had the same words on it that it had when they read it the first time. तो उस पर वही शब्द से जो उन्होंने पहली बार पढ़े थे। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ स्टूडेंट्स, ये स्टैंजा मतलब ये पैरा। उन्होंने पन्ने पलटे जो पीले और सलबट युक्त हो रहे थे, और उन्हें उन शब्दों को पढ़ना बहुत ही अजीब लग रहा था, जो स्थिर थे, हिल नहीं रहे, जैसे आपको पता है कि स्क्रीन पर होते हैं। और जब उन्होंने पिछला पन्ना पलटा तो उस पर वही शब्द से जो उन्होंने पहली बार पढ़े थे। ओके, "Gee," said Tommy, "what a waste when you are
through with the book. You just throw it away. जी, टॉमी ने कहा, कितना बेकार है। मेरा अनुमान है जब आपने पुस्तक पढ़कर समाप्त कर दी तो उसे फेंक दिया। I guess our television screen must have had a million books on it, and it's good for plenty more. I wouldn't throw it away. हमारे टीवी के पर्दे पर शायद 10 लाख किताबें होंगी और इस प्रकार बहुत सी किताबें आ सकती है। मैं इसे नहीं फेंकूंगा। Same with mine, said Margie. She was 11 and hadn't seen as many telebooks as Tommy had. He was 13. मेरे साथ भी ऐसा ही है, मार्जी ने कहा। वो 11 वर्ष की थी और उसने इतनी टेली किताबें नहीं देखी थी जितनी टॉमी ने, जो 13 वर्ष का था। She said, where did you find it? उसने कहा कि तुम्हें ये कहाँ से मिली? In my house, he pointed without looking because he was busy reading in the attic. What's it about? School. उसने कहा, तुम्हें ये कहाँ से मिली? मेरे घर में। उसने बिना देखे उत्तर दिया क्योंकि वो पढ़ने में व्यस्त था। और in my house he pointed without looking because he was busy reading in the attic. What's it about school? Margie was scornful. School? What's there to write about school? I hate school. मेरे घर में। उसने बिना देखे उत्तर दिया क्योंकि वो पढ़ने में व्यस्त था। दुखती में से ये किसके बारे में है? स्कूल। फिर मार्जी घृणा से भर गई। स्कूल के बारे में लिखने वाली क्या बात है? मैं स्कूल से घृणा करती हूँ। Margie always hated school, but now she hated it more than ever. The mechanical teacher had been giving her test after test in geography, and she had been doing worse and worse until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the country inspector. तो क्या बताया गया इधर? मार्जी घृणा से भर गई स्कूल के नाम सुनकर। स्कूल के बारे में लिखने वाली क्या बात है? उसने कहा, मार्जी ने कहा, मैं स्कूल से घृणा करती हूँ। मार्जी को स्कूल से हमेशा घृणा थी, पर जब उसे पहले से भी ज़्यादा हो गई, मतलब घृणा पहले से भी ज़्यादा हो गई। मशीनी अध्यापक उसे भूगोल में टेस्ट दिए जा रहा था और वो बद से बदतर किए जा रही थी। तब तक उसकी माँ ने अफसोस के साथ सिर नहीं हिलाया और क्षेत्र के इंस्पेक्टर को बुला भेजा। He was a round little man with a red face and a whole box of tools with dials and wires. He smiled at Margie and gave her an apple. Then took the teacher apart. वो एक गोल मटोल लाल मुंह वाला छोटा आदमी था जिसके पास यंत्रों, डायल तथा तारों के पूरा भरा बक्सा था। वो मार्जी को देख मुस्कुराया और उसे एक सेब खाने को दिया। फिर उसके अध्यापक
पुर्जे खोल दिए। ओके, Margie had hoped he wouldn't know how to put it together again, but he knew how all right, and after an hour or so there it was again, large and black and ugly, with a big screen on which all the lessons were shown and the questions were asked. ओके, फिर क्या हुआ? फिर वो मार्जी को देख के मुस्कुराया और उसे एक सेब खाने को दिया। फिर उसके अध्यापक के पुर्जे खोल दिए। मार्जी को आशा थी कि उसे उन्हें वापस जोड़ना नहीं आएगा, परंतु उसे बिल्कुल ठीक आता था और लगभग 1 घंटे बाद वह था। ओके, फिर क्या हुआ? And asked, that wasn't so bad. The part Margie hated was the slot where she had to put homework and test paper. फिर क्या हुआ? परंतु उसे बिल्कुल ठीक आता था और लगभग 1 घंटे बाद वह था बड़ा काला और वद्दा, एक पर्दे के साथ जिस पर सभी पाठ प्रश्नों सहित दिखाई दे रहे थे। ओके, इतना बुरा नहीं था। फिर मार्जी को जिस हिस्से से घृणा थी वो था वो दरार जिसमें उसे अपना होमवर्क तथा टेस्ट पेपर रखने होते थे। She always had to write them out in a punch code they made her learn when she was 6 years old, and the mechanical teacher calculated the marks in no time. मार्जी को जिस हिस्से से घृणा थी वो था वो दरार जिसमें उसे अपने होमवर्क तथा टेस्ट पेपर रखने होते थे। उसे हमेशा उन्हें पंजों की गुप्त भाषा में लिखना होता था, जिसे उन्होंने जब वो 6 वर्ष की थी तो सिखाया गया था। मशीनी अध्यापक पल भर में नंबरों का हिसाब लगा देता था। ओके, अभी इधर कुछ प्रॉब्लम नहीं है, मुझे लगता है स्टूडेंट्स आप लोग पूरा समझ गए होंगे इतना तक। फिर हम लोग दूसरे पैरा में जाते हैं। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड एंड पैटेड मार्जीज हेड. He said to her mother, "It's not the little girl's fault, Mr. Jones. I think the geography sector was geared a little too quick." फिर क्या हुआ? जब इंस्पेक्टर ने काम पूरा किया तो वो मुस्कुराया और उसने मार्जी का सिर थपथपाया। उसने उसकी माँ से कहा, "श्रीमती जोन्स, मतलब मिसेस जोन्स, इस छोटी सी लड़की की कोई गलती नहीं है। मेरा ख्याल है कि भूगोल का भाग थोड़ा तेज चल रहा था। चल रहा था। Those things happen sometimes. I have slowed it up to an average 10 years level." फिर उसने क्या कहा? मेरा ख्याल है कि भूगोल का भाग थोड़ा तेज चल रहा था। ऐसी बात कभी कभी हो जाती है। मैंने उसे मैंने उसे 10 वर्ष के अवसर पर धीमी कर दिया है। वास्तव में इसकी उन्नति का संपूर्ण नमूना संतोषजनक है। और उसने मार्जी के सिर को फिर से थपथपाया। Actually, the overall pattern of her
progress is quite satisfactory and he patted Margie's head again. Okay students, अभी next पैरा में आते हैं हम लोग. Margie was disappointed. She had been hoping they would take the teacher away altogether. They had once taken Tommy's teacher away for nearly a month because the history sector had blanked out completely. मार्जी निराश हो गई. वो आशा कर रही थी कि वो अध्यापक को पूर्ण रूपेण बाहर निकाल देंगे. एक बार उन्होंने टॉमी के अध्यापक को लगभग 1 महीना निकाले रखा क्योंकि उसके इतिहास के पूरे हिस्से का सफाया हो गया था. इसलिए उसने टॉमी से कहा, कोई स्कूल के बारे में क्या लिखेगा? Okay, so she said to Tommy, why would anyone write about school? Tommy looked at her with very superior eyes. Because it's not our kind of school, stupid. This is the old kind of school that they had hundreds and hundreds of years ago, he added loftily, pronouncing the word carefully, centuries ago. टॉमी ने उसकी और गर्व से देखा क्योंकि वो हमारी तरह का स्कूल नहीं है मूर्ख. ये पुरानी तरह का स्कूल है जो सैकड़ों वर्ष पहले हुआ करता था. उसने शब्द को ठीक से उच्चारण करते हुए गरिमापूर्ण तरीके से बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, सैकड़ों साल पहले. Margie was hurt. Well, I don't know what kind of school they had all that time ago. She read the book over his shoulder for a while, then said, anyway, they had a teacher. Margie को चोट पहुंची. अच्छा, मुझे नहीं पता वर्षों पहले कैसे स्कूल होते थे. उसके कंधे पर से कुछ देर उसके कंधे पर से कुछ देर उसने ये किताब पढ़ी. फिर कहा, जो भी है उनका अध्यापक भी था. Students, now I am going to the next page. It's too big story. I am feeling little bit tired. Okay, I am continuing again. Sure, they had a teacher, but it wasn't a regular teacher. It was a man. A man? How could a man be a teacher? Well, he just told the boys and girls things and gave them homework and asked them questions. A man isn't smart enough. निश्चय ही उनका भी अध्यापक था, लेकिन वो आम प्रकार का अध्यापक नहीं था. वो एक मानव था. एक मानव अध्यापक कैसे हो सकता है? देखो, समझने की कोशिश करो. वो लड़कियों को कुछ बातें बताता था, गृह कार्य देता था और प्रश्न पूछता था. एक आदमी इतना चतुर नहीं हो सकता. Sure, he is my father, knows as much as my teacher. He knows almost as much. I betcha. Margie wasn't prepared to dispute that. She said, I wouldn't want a strange man in my house to teach me. एक आदमी इतना चतुर नहीं हो सकता. निश्चित रूप से वो है. मेरे पिता उतना ही जानते हैं जितना मेरे अध्यापक. मैं शर्त लगा कर कहती हूँ कि वो लगभग उतना ही जानते हैं जितना मेरे अध्यापक. मार्जी बहस में नहीं पढ़ना चाहती थी. उसने कहा, मैं एक अजनबी को मुझे सिखाने के लिए अपने घर में नहीं बुलाना चाहूँगी. Tommy screamed with laughter. You don't know much, Margie. The teachers didn't live in the house. They had a special building and all the kids went there. And all the kids learned the same thing. Sure.
Sure, if they were the same age. टॉमी हंसी में चीखा, मार्जी तुम कुछ नहीं जानती हो। अध्यापक घर पर नहीं रहते थे, उनकी एक विशेष इमारत होती थी और सभी बच्चे वहाँ जाते थे और सभी बच्चे एक ही चीज़ सीखते थे, निश्चित रूप से अगर वो एक ही आयु के होते। पर मेरी माँ कहानी कहती है कि अध्यापक को उस प्रत्येक लड़के और लड़की के मस्तिष्क के अनुसार ढालना पड़ता है जिसको वो पढ़ाता है। ओके, and all the kids learned the same thing, sure, if they were the same age. Okay, but my mother says a teacher has to be adjusted to fit the mind of each boy and girls it teaches, and that each kid has to be taught differently. तो क्या बता रहे हैं इधर फिर मेरी माँ कहती है कि अध्यापक को उसे प्रत्येक लड़के और लड़की के मस्तिष्क के अनुसार ढालना पड़ता है जिसको वो पढ़ाता है। ठीक है, फिर जस्ट द सेम दे डिडंट डू इट दैट वे देम। If you don't like it, you don't have to read the book. I didn't say I didn't like it, Margie said quickly. She wanted to read about those funny schools. ऐसा ही है, पर उस समय वो जैसे इस प्रकार नहीं करते थे। अगर तुम्हें ये पुस्तक पसंद नहीं है तो पढ़ना ज़रूरी नहीं। मैंने ये तो नहीं कहा कि मुझे पसंद नहीं है, मार्जी ने शीघ्रता से कहा। वो उन अजीब स्कूलों के बारे में पढ़ना चाहती थी। Margie said quickly. She wanted to read about those funny schools. They weren't even half finished when Margie's mother called. Margie, school. Margie looked up. Not yet, Mama. Now, said Mr. Jones, and it's probably time for Tommy's school. Margie said to Tommy, can I read the book some more with you after school? Maybe, he said. Okay. Nonchalantly. Maybe, he said nonchalantly. He walked away whistling. The dusty old book tucked beneath his arm. उन्होंने अभी आधा भी समाप्त की थी कि मार्जी की माँ ने पुकारा, मार्जी स्कूल। मार्जी ने ऊपर देखा। अभी नहीं माँ, अभी श्रीमती मतलब मिसेस जोन्स ने कहा, और शायद टॉमी का भी समय हो गया है स्कूल जाने का। मार्जी ने टॉमी से कहा, क्या मैं स्कूल के बाद आपके साथ थोड़ा टॉमी स्कूल नहीं जाते थे तो टॉमी का घर जाने का टाइम हो गया। मार्जी ने टॉमी से कहा, क्या मैं स्कूल के बाद आपके साथ थोड़ा और पढ़ सकती हूँ? शायद, उसने ठंडे दिल से कहा। वो सीटी बजाता दूर चला गया। धूल भरी पुरानी पुस्तक उसने बाजू के नीचे घुसाकर रखी थी। ओके, फिर क्या हुआ? Margie went into the schoolroom. It was right next to her bedroom, and the mechanical teacher was on and waiting for her. It was always on at the same time every day except Saturday and Sunday. Margie स्कूल के कमरे में गई, पर उसने सोने की कमरे से अलग कमरा था, पर वो उसके सोने की कमरे के से अलग कमरा था, और मशीनी अध्यापक उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। शनिवार और रविवार को छोड़कर वो रोज़ाना उसी समय पर चालू होता था। Because her mother said little girls learn better if they learn at regular hours. क्योंकि उसकी माँ कहती थी कि छोटी लड़कियाँ अगर नियमित घंटे पढ़े तो अधिक अच्छा सीखती है। The screen was lit up
बाप रे, बहुत बड़ा सा स्टोरी है और थोड़ा बाकी है हमारा, ठीक है। द स्क्रीन वॉज लीट अप एंड इट सेड टूडेज arithmetic lesson is on the addition of proper fractions. Please insert yesterday's homework in the proper slot. पर्दा प्रकाशित हुआ और कह रहा था कि आज हिसाब का पाठ विभाजित अंशों को जोड़ने का है। कृपया कल का होमवर्क उपयुक्त छेद में डाल दे। Margie did so with a sigh. She was thinking about the old schools they had when her grandfather was a little boy. All the kids from the whole neighborhood came. मार्जी ने आह भरकर ऐसा किया। वो पुराने स्कूलों के बारे में सोच रही थी जो उसके दादा के दादा जब छोटे लड़के हुआ करते थे। अड़ोस पड़ोस के सभी बच्चे हंसते चिल्लाते स्कूल के आंगन में आते थे। ओके, स्कूल के कमरे में इकट्ठे बैठते थे, दिन के अंत में इकट्ठे घर जाते थे। तो all the kids from the whole neighborhood came laughing and shouting in the schoolyard, sitting together in the schoolroom, going home together. At the end of the day, they learned the same thing, so they could help one another with the homework and talk about it. वे एक से चीज़ें सीखते थे, अतः एक दूसरे की गृह कार्य में सहायता कर सकते थे और उसके बारे में बातें कर सकते थे। एंड द टीचर्स The mechanical teacher was flashing on the screen when we added fractions, half and 1/4. Margie was thinking about how the kids must have loved it in the old days. She was thinking about the fun they had. मशीनी अध्यापक अचानक पर्दे पर प्रकाशित कर रहा था जब हम विभाजित अंकों हाफ और 1/4 को जोड़ते हैं। मार्जी सोच रही थी बच्चों को पुराने दिनों में कितना अच्छा लगता होगा। वो उनके आनंद के बारे में सोच रही थी जो उन्हें मिलता होगा। तो स्टोरी ख़त्म हुआ। इसका राइटर है आइजैक एसिमोव। ओके, सो बच्चों, मुझे लगता है आपको बहुत अच्छी लगी स्टोरी और इसका जो मीनिंग है वो भी। तो आशा करती हूँ कि आपको अच्छी लगी और मुझे लिखकर ज़रूर भेजेंगे आप लोग। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर से मिलेंगे किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।